Hello everyone. In this video we are going to discuss about histology of stomach. I am Dr. Mohammad Ismail, Department of Zoology, JT College, Malegaon. The stomach is a muscular or sac-like organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from the esophagus. As food reaches the end of the esophagus, it enters the stomach through a muscular wall, which is known as the lower esophageal sphincter. Okay, so stomach is more tubular than circular one. The next point is it is highly elastic one. Obviously, we can imagine that why the elasticity is there in stomach, because food molecules which we have eaten is how to be stay in for some time in the stomach for chemical as well as mechanical digestion. So that's why it is elastic one. Elasticity is there. So stomach is also highly elastic one. Its mechanical and chemical actions prepare the food for further digestion and absorption. What are the functions which basically carried out by the stomach is mechanical and chemical actions on the food molecule by which the food is prepared for further digestion. Okay, complex molecules are broken down in the stomach with the help of digestive enzymes as well as some acid one. So इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और आगे के लिए फिर एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए इजी हो जाता है. ह्यूमन स्टमक इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स. हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन स्टमक को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस, लेकिन ये गलत था उस टाइम. एक्चुअल में क्या है, कार्डियक और फंडस ये एक ही पार्ट है, बस थोड़ी दूर का हिस्सा होता है. मैं आपको आगे बताता हूँ उसकी फिगर. सो कार्डियक फंडस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक. The second part is the corpus, which is the body of the stomach, which is the largest part of the stomach, and the third one is the ending part is known as pylorus. Now see the figure. See here in the box in the left side, here is the cardia and fundus. देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक the cursor is showing the cardiac and fundus of the stomach one, and from here up to the this point, this is the body of the stomach, which is known as corpus, and is the ending part, the posterior part of the stomach is the pylorus one. Okay, and this is the histological structure. हम आगे देखते हैं कैसे होते हैं. And histologically, the corpus and the fundus are the identical one, while the pylorus is a markedly different one. इन दोनों तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है. जो पाइलोरस है वो मतलब जो एंडिंग पार्ट है वो मिडल पार्ट से और एंटीरियर पार्ट से काफी डिफरेंट है. लेकिन एंटीरियर पार्ट और मिडल पार्ट ये हिस्टोलॉजिकली सेम होता है, मतलब इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं और जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो बेसिकली सेम होता है. Okay, now हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. एक्चुअल में उसकी एनाटॉमी कैसी है, कौन कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और लेयर्स में कौन कौन से एक्स्ट्रा लेयर है, उसका उसके अंदर कौन कौन से सेल्स और ग्लैंड्स हैं, ये हमें देखना है. तो फिर बेसिक लेयर यहाँ पर भी है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोजा. But the difference is that different glands is present in mucosa and submucosa layer. So we will see one by one. Now the first one, the first innermost layer is the mucosa. Okay. When the stomach is empty, अगर उसमें food molecule नहीं है, its inner surface shows many longitudinal folds, which is known as ryugi. अब ये ryugi देखो क्या होता है, स्टमक जब empty होता है तो obviously थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है. ओके, तो ये जो सुकलने का जो मैकेनिज्म है, ऑब्वियसली जब वो डिस्टेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी दीवार काफी लेंदी है, तो जब सुकड़ रही है तो फोल्ड होकर वो एडजस्ट होगी. तो जो इंटरनली ल्यूमेन की तरफ जो फोल्ड्स प्रिपेयर होते हैं एम्प्टी स्टमक के अंदर, उसे रियुगी कहा जाता है. वो देखो कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ स्मॉल एरिया बताए गए. यहाँ पर देखो ये फोल्ड्स जो नजर आ रहे हैं, दिस फोल्ड्स आर नोन एज रियुगी. ओके, और एक बार दिखाता हूँ मैं आपको. देखो the internally you can see the folding is there. This folding is known as ryugi. ये folding क्यों है, क्योंकि
ऊपर वाले ने इसको ऐसा फोल्डिंग बनाया ताकि जब इसमें फूड मॉलिक्यूल आएगा तो वो डिस्टेन होगा। ओके, फैलने के लिए उसको क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो ये रिगी इसलिए होते हैं। Now, when the stomach is distended with the food, the rigi disappear. Obviously, जब हम उसको टाइट करेंगे, extend करेंगे, all the rigi will disappear, all the fold will disappear. And this is possible because of the loose nature of the submucosa. Why and what are the structures behind these folds? इसके पीछे जो मेन स्ट्रक्चर है वो सब म्यूकोजा है, और सब म्यूकोजा क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर। रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं कुछ, और कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और ये सारे लूजली अरेंज होते हैं, लाइक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों एग्जांपल्स हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो सब म्यूकोसा के अंदर हमें ये दिखाई देता है। द एंटायर सरफेस epithelium is composed of very tall and equally basally nucleated mucus secreting cells. देखो जब हम इपिथेलियम, अब इपिथेलियम मतलब क्या, हम म्यूकोजा पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ओके, म्यूकोजा मतलब इनर मोस्ट लेयर। अब इनर मोस्ट लेयर में हम 3 लेयर्स देखे हैं, गूगल याद है आपको, म्यूकस मेम्ब्रेन या इसको एपिथेलियल लेयर्स भी कहते हैं, नंबर 2 लैमिना प्रोप्रिया, एंड नंबर 3 मस्क्यूलरिस इंटरना या मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। ओके, तो ये 3 लेयर्स म्यूकोजा की है। तो म्यूकोजा की जो पहली लेयर है इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट, जो ल्यूमेन के फेस कर रहा है, वो लेयर कैसी बनी हुई है, यहाँ पर टॉल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई है। द फ्री सरफेस ऑफ दीज सेल्स फॉर्म माइक्रोविलाई। ऑब्वियसली यहाँ पर माइक्रोविलाई का इंटेंशन हमें समझ में आ सकता है। व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड माइक्रोविलाई? माइक्रोविलाई का इंटेंशन ये है कि उसका एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो बढ़ा सके। ओके, क्योंकि जब ये एरिया उतना ही रहेगा तो जब फूड मॉलिक्यूल उसमें आएगा तो वो डिस्टेंड नहीं हो पाएगा। ओके, so the main intention behind the microvilli is to increase the surface area of stomach lumen. तो फ्री सरफेस जो होती है सेल्स की, उसमें माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। विलाय अलग होते हैं, माइक्रोविलाय अलग होता है। विलाय मतलब क्या, पूरी इपिथेलियल लेयर इस तरह से अगर फोल्ड है, ये विलाय हो गए। और माइक्रोविलाय मतलब क्या, पर्टिकुलर सेल की जो अपाइकल सरफेस है, उस अपाइकल सरफेस के ऊपर इस तरह से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग प्रिपेयर की हुई, उसे माइक्रोविलाय कहते हैं। ओके, the epithelium consists of millions of tiny gastric pits which are short in fundus and the corpus but long in pyloric region. देखो पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जा रहे हैं हम। द इपिथेलियम, जब हम इपिथेलियम को सरफेस व्यू देखेंगे, इपिथेलियम को ल्यूमेन की तरफ से, तो हमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइन्यूट पिट्स, बारीक बारीक सुराख नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये एक्चुअल में। तो ये टाइनी पिट्स क्या होते हैं, ये गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं। गैस्ट्रिक पिट मतलब ये कि सुराख होता है और नीचे की तरफ ट्यूब्यूलर ग्लैंड होता है। देखो इस तरह से ये ग्लैंड्स होते हैं, नहीं सॉरी ऊपर ही फिगर में है, 1 मिनट सॉरी, यहां पर देखो, जब ये कर्सर देखो मेरा, इस पर्टिकुलर एरिया को हम डिस्टेंड करने के बाद हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक टाइनी पिट्स नजर आएंगे, सुराख नजर आएंगे। और जब उसको हम एनलार्ज करके देखेंगे तो सी दिस द सरफेस एरिया, जिसमें आपको मैंने बताया कि टाइनी पिट्स है, इसे गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। ओके, जब इसको हम साइड से देखेंगे कि एक्चुअल में उस पिट के अंदर क्या है, तो हमें देखो इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आते हैं। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज द मेन फीचर ऑफ स्टमक वन। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, इतने से स्ट्रक्चर को यहाँ एनलार्ज करके बताया जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक देखो, इस लाइनिंग तक, दिस इज द म्यूकोजा। ओके, ये पूरा म्यूकोजा है। अब इसमें देख लो आप लोग, ये जो सेल्स की लेयर नजर आ रही है, दिस इज द इपिथेलियम, जो आपको बताया मैंने, कॉलमनार टॉल सेल्स होते हैं। उसके बाद 1 मिनट, और ये जो लेयर है पिंकिश कलर की जो लेयर है, दिस लेयर इज द लैमिना प्रोप्रिया। और ये नीचे की जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं मस्क्यूलर। देखो यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, हाँ, मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। ओके, दिस मिडल लेयर इज नोन एज लैमिना प्रोप्रिया एंड दिस वन इज द सरफेस एपिथेलियम। ये म्यूकोजा की 3 लेयर जो हम देखे हैं, ये वही बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड हियर इज द सब म्यूकोजा। 1 मिनट,
Slide. About द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक पिट्स। तो गैस्ट्रिक पिट क्या आपको इसे याद रखना है, हम जब स्टमक को कट करेंगे उसके सरफेस एरिया से देखें, मतलब म्यूकोजा से देखेंगे, तो हमें पहले रियूगी नजर आएगी। हम उसको डिस्टेंड किए और माइक्रोस्कोप पे देखें तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पिट्स नजर आएंगे। तो टाइनी पिट्स क्या है, वो गैस्ट्रिक पिट्स हैं। ओके, उसे गैस्ट्रिक पिट्स कहा जाता है। तो जब उसको साइड से देखेंगे, अभी मैंने कट द साइड सेक्शन, टीएस लेंगे हम जिसका, तो टीएस लेने वाला हमें क्या नजर आएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। ओके, तो ये पूरे स्टमक की दीवार है। देखो यहां पर समझ लो आप लोग, पहली लेयर कौन सी होती है, म्यूकोजा। दिस वन इज द म्यूकोजा फ्रॉम दिस एरिया अप टू द दिस। ओके, नंबर 2 इज द सब म्यूकोजा। देखो यहाँ पर ब्लड वेसल जहां लिखी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। 1 मिनट, शगुप्ता क्या पूछ रहे हो, क्लियर पूछो। ओके, एंड द थर्ड लेयर इज द मस्क्यूलरिस। जो बेसिक लेयर में हम देखते हैं मस्क्यूलरिस, तो यहां पर हमें लॉन्जिट्यूडिनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स नजर आते हैं। एंड द लास्ट वन इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, को हम सिरोजा कहते हैं। ओके, तो ये 4 लेयर बेसिक लेयर है। हम उसमें पढ़ रहे हैं सबसे पहले म्यूकोजा। अब म्यूकोजा के बारे में हमने कल भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि उसमें 3 और लेयर्स होती है। यहां पर देखो नजर आ रही सेम थिंग। दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, एपिथेलियम, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड द सेकंड लेयर इज द लैमिना प्रोप्रिया। देखो ये लैमिना प्रोप्रिया है। और द थर्ड लेयर इज द मस्क्यूलरिस म्यूकोजी। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, म्यूकोजा के अंदर के गैस्ट्रिक पिट नजर आते हैं, और वो गैस्ट्रिक पिट साइड से इस तरह से नजर आते हैं। एक्चुअल में उसके अंदर ट्यूब्यूलर, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ना, एंड ब्रांच क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ओके, हमें सारे स्ट्रक्चर बाद में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो मसल्स के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो कैसा होता है, आगे हम देखते हैं। नाउ सो दीज आर द गैस्ट्रिक पिट। देखो यहाँ पर नजर आए टाइनी और गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, जो एक्चुअल में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। द पिट्स आर बेसिकली कनेक्टेड टू क्लोजली पैक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं। ओके, क्योंकि म्यूकस के अंदर ही है, म्यूकोजा के अंदर ही है, तो उसको म्यूकोजल ग्लैंड कहते हैं। तो गैस्ट्रिक पिट ये कनेक्टेड है अंदर की तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से। The surface cells continuously produce a viscous alkaline mucus which coats the stomach lining. Now, what are the functions of these cells? जो सरफेस के सेल्स हैं, ये देखो कर्सर, हाँ, ये जो सरफेस के यहां तक के सेल्स हैं, थोड़ा सा 2-3 सेल 5 सेल नीचे की तरफ, ये जो सरफेस के सेल्स हैं, these cells are responsible for producing the mucus. विस्कस म्यूकस जो कोट करता है ल्यूमेन को पूरी तरह से, ताकि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, ओके, वो पेप्टिक एंजाइम्स होते हैं, तो वो उनके एक्शन से स्टमक की दीवार को बचाने का काम करते हैं। नंबर 2, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एचसीएल होता है उसके इफेक्ट से बचाते हैं। ओके, देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टमक लाइनिंग को कोट करते हैं एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉसिबल एब्रेसिवनेस ऑफ द फूड एंड फ्रॉम गैस्ट्रिक ज्यूस। ओके, दीज आर द डिफरेंट एरियाज। नाउ सेकंड लेयर पर आते हैं, ये तो होगा एपिथेलियल लेयर। सेकंड लेयर पर आते हैं म्यूकोजा की लैमिना प्रोप्रिया, ड्यू टू अबंडेंट क्लोजली पैक्ड ग्लैंड्स। अब यहाँ पर ग्लैंड कौन से हैं, जो आपको बताया ट्यूब्यूलर ग्लैंड है, वो एक्चुअल में क्या है, एपिथेलियल ग्लैंड्स हैं, लेकिन लैमिना प्रोप्रिया तक आए हुए हैं। अब बहुत सारे लैमिना प्रोप्रिया होने की वजह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉरी ग्लैंड्स होने की वजह से। इट कंटेन्स पुअरली डेवलप कनेक्टिव टिश्यूज। मैंने आपको बताया था लैमिना प्रोप्रिया ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इट ऑल्सो कंटेन फ्यू स्मूथ मसल फाइबर्स, mast cells, fibrocytes and plasma cells. All functions of these cells we have better know.
मसल सेल्स और मसल फाइबर का मेन इंटेंशन ये है कि ये आसानी से डिस्टेन हो सके और वापस अपनी पहली पोजीशन पर आ सके। मास सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सम हिस्टामिन, ओके, जो कि एक तरह के क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। फाइब्रोसाइट इज बेसिकली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फाइबर्स एंड प्लाज्मा सेल इज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग cells. So these are the different cells also present in lamina propria. और लैमिना प्रोप्रिया की पोजीशन आपको बताया मैंने क्या है। नाउ द थर्ड लेयर ऑफ म्यूकोजा इज द मस्क्यूलरिस म्यूकोजी, इसीलिए यहाँ पर मस्क्यूलरिस म्यूकोजी लिखा जाता है। एक और मस्क्यूलरिस आएगा, वो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना होता है। तो इट हैज टू यूजुअल इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल लेयर। यहाँ पर बेसिक हम वही देखते हैं जैसा कि मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में हम देखते हैं। मसल्स कैसे अरेंज है यहाँ पर, तो पहली जो लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है मस्कुलरिस म्यूकोजा की, वो सर्कुलर मसल्स, आपको बताया था कल कैसे होते हैं सर्कुलरिस, सॉरी सर्कुलर मसल। और आउटर जो मसल की लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल है। अब देखो यहाँ पर इस फिगर में आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, देखो ये जो मसल बताई गई यहाँ पर, ये क्या है, इस मसल्स को छोड़ दो, ये तो एक्सटर्ना का पार्ट है, ये हम आगे देखते हैं। अब इस पार्ट पर आते, देखो इस मसल की लाइनिंग देखो कैसी है और इस मसल की लाइनिंग देखो कैसी है, दोनों डिफरेंस नजर आ रहे हैं। अब ये ल्यूमेन की गोलाई के हिसाब से राउंड है, देखो ये वाली लेयर, ओके, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल्स कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर और एक कोट है, और एक लेयर की कोट है, जो कि इसकी लेंथ के हिसाब से, तो ये फाइबर्स अरेंज है मसल फाइबर, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल। तो सेम थिंग यहां पर आओ, देखो ये मस्कुलरिस म्यूकोसा नजर आ रहा है कर्सर, तो यहां पर भी अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ इन सर्कुलर लेयर है, और थोड़ा बाहर की तरफ मतलब सब म्यूकोसा की तरफ कौन है, म्यूकोसा की, तो वहां पर भी इंटरनली अरेंज सर्कुलर मसल्स है, और एक्सटर्नली आउटर जो लेयर है वो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है। नाउ कम टू द पॉइंट, ओके, तो दिस इज द थ्री लेयर्स ऑफ म्यूकोसा एपिथेलियम। सो हमने ये देखा कि ये सारे स्टमक के म्यूकोजा के बारे में ये सारी डिटेल्स हमने देखी। सो दिस ऑल अबाउट द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।